شہری اولیا میں برسنے والی بارش نے موسم تو خوشگوار کر دیا، لیکن بارش کے پانی کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر رہی۔ ماجد کلاسرا کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں ہونے والی بارش نے پورے شہر میں جل تھل کر دی۔ موسم تو خوشگوار ہوا، لیکن بارش شہریوں کے لیے زحمت کا باعث بن گئی۔ سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئی، شہری پانی میں پھنس کر رہ گئے۔ گھنٹے سے روڈ پورا بلاک ہے۔ ملتان کی مین شاہراہ عبدالی روڈ سے کہلاتی ہے۔ اس میں ایمبولینس پھنسی ہوئی ہیں، رکشے پھنسی ہوئے ہیں، کوئی پرسال نہیں ہے، نہ کوئی واسا والا ہے، نہ کوئی یہاں پہ کوئی مطلب ہے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سارا پانی ہی پانی ہے۔ ہم اتنی دیر سے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث اندرون، حرم گیٹ، بوہر گیٹ، دہلی گیٹ، رشید آباد، کینٹ، گلگشت، بوسن روڈ، حسین اگئی بازار پانی میں ڈوب گئے۔ بارش کے باعث ایس پی چوک، ہائی کورٹ چوک، گیلانی روڈ، طارق روڈ پر شدید ٹریفک جام رہا۔ ویسے تو موسم کی وجہ سے پانی آیا کھڑا ہے، لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہوا پڑا ہے، اور واسا والوں کو چاہیے کہ پانی نکال۔ میپکو ریجن میں بارش اور آندھی کے باعث بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ نو آپریشن سرکل کے 150 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ملتان، خانیوال، وہاڑی، مظفر گڑھ، بہاولپور، ڈی جی خان اور سہیوال شامل رہا۔ بارش آئی ہے، موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن واسا کام کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بارش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، ہم لوگوں کو کافی دشواری پیش آ رہی ہے اپنے گھروں کو جانے کے لیے۔ میں یہی کہوں گا کہ واسا کام کو چاہیے کہ اپنا کام جلد سے جلد مکمل کریں۔ چنگی نمبر 9 کے علاقے میں 43 ملی میٹر، کیڑی جمندہ ڈسپوزل اسٹیشن پر 40 ملی میٹر، سمیج آباد میں 28 ملی میٹر اور پرانا شوج آباد روڈ پر 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہری اولیا میں برسنے والی بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، دوسری جانب بارش کا پانی روڈز پر موجود ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ شہری واسا حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ روڈ پر موجود پانی کو جلد از جلد نکالا جائے تاکہ شہریوں کو گزرنے میں آسانی ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ادھر بارش کے بعد ملتان اور بہاولپور کے مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا اور سڑکیں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ اسپیڈو بسیں بھی پانی میں ڈوبی نظر آئیں، جبکہ شہریوں کو موٹر سائیکل بھی پانی میں گھسیٹ کر لے جانا پڑا۔ بڑوں کو جہاں پانی سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہیں بچے پانی میں نہاتے رہے۔ بہاولپور میں بھی بارش کے بعد سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ ادھر جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ جل تھل ایک گلیاں اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بہاولپور کے سرکولر روڈ پر پانی جمع ہو گیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ پر۔ بہاولپور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، ہر جگہ پانی جمع، سرکولر روڈ تالاب بن گیا۔ یزمان میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہیڈراج کا کٹوالا ٹیوالا میں تیز بارش سے گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ احمد پور شرگیہ میں بچوں نے بارش کے دوران خوب انجوائے کیا۔ وہاڑی شہر اور گرد نواح میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کے مختلف فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ برے والا میں بھی بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بہاول نگر اور گرد نواح میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش میں نہا کر خوب انجوائے کیا، جبکہ فصلوں پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ چشتیاں شہر اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، جل تھل ایک ہو گیا۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا شہر کا دورہ۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ واسا ڈسپوزل اسٹیشن کو چالو کرنے اور مشینری فعال کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے شدید بارش کے بعد شہر کا دورہ کیا۔ کمشنر ملتان نے کہا کہ بارشوں کے پیش نظر تمام محکمے ریڈ الرٹ ہیں، واسطہ تمام مشینری کے ذریعے نشیبی علاقوں کو کلیئر کرے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے فیلڈ میں ہے، تمام ڈسپوزل اسٹیشن مکمل فعال اور ورکنگ میں ہے۔ ایم ڈی واسا نے نکاسیاب کے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ بہاولپور انتظامیہ کی نااہلی رحمت زحمت بن گئی، ہر طرف بارش کا پانی، شہریوں کو کئی گھنٹے تک مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں بادل برس پڑے، سرکلر روڈ تالاب بن گیا، متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع، مختلف سڑکوں سے گزرنا محال ہو گیا۔ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، اس سے یہ حال ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نہ کرے کوئی اگر زیادہ بارش ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو ماشاءاللہ گورنمنٹ کر رہی ہے نا، یہ جیسے سوچا تھا بھی عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں گے، لیکن سب زیرو چل رہا ہے۔ بہاولپور میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، سرکلر روڈ، لاری اڈا، کینٹ روڈ اور یزمان روڈ پر پانی کے تالاب نظر آئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ نکاسی آب کے لیے کوشاں رہا۔ بارش ہوتی ہے تو پمپنگ اسٹیشن پہ لائٹ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نکاسی آب میں
ذرا تاخیر ہوتی ہے. ہم نے اپنے وسائل میں رہ کے کام کرنا ہے اور جیسے جیسے انہیں ہمارے سہولیات ملتی ہیں ہم اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. نوابوں کے شہر میں سیوریج لائن کی آخری بنیادیں بھی نوابوں کی رکھی ہوئی ہیں. اتنے پرانے سیوریج سسٹم کی بہتری کے بغیر سیوریج مسائل کم نہیں ہو سکتے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. ادھر رحیم یار خان میں رکن پور کے علاقے میں 2 نہروں میں شگاف پڑنے کا معاملہ. اسسٹنٹ کمشنر عثمان چودھری کہتے ہیں کہ ڈالج برانچ پر شگاف پر کر دیا گیا ہے. چھوٹی معنی میں شگاف کو بھی جلد پر کر دیا جائے گا. حلقے کے ایم این اے مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جوابک نے علاقہ مکینوں کی کوئی خبر نہیں لی. رحیم یار خان میں رکن پور کے علاقے میں ڈالج برانچ پر 60 فٹ چوڑا شگاف پڑا، جبکہ قریبی رکن ڈسٹی مانر میں مجموعی طور پر 100 فٹ سے بھی زائد چوڑائی کے شگاف پڑے. وزیر اعلیٰ نے نوٹس پر ضلع انتظامیہ کے افسران موقع پر پہنچے. محکمہ انہار، ریسکیو سمیت دیگر متعلقہ محکموں کی ٹیموں نے امدادی کارروائیاں شروع کی. اسسٹنٹ کمشنر عثمان چودھری نے کہا کہ 15 گھنٹوں بعد بڑی نہر کا شگاف پر کر دیا گیا ہے. چھوٹی نہر کے شگاف کو بھی پر کر دیا جائے گا. انکوائری کمیٹی جلد ذمہ دار عملے کے خلاف رپورٹ پیش کرے گی اور کارروائی ہوگی. دوسری جانب حلقے کے ایم این اے وفاق کے وزیر مخدوم خسرو بختیار اور ہاشم جوابک نے 500 سے زائد گھروں کے نہر میں پانی سے اجڑنے والے متاثرین اور مکینوں کی کوئی خبر نہیں لی. اب بات کریں گے بجلی کے جھٹکوں کے بارے میں. بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. بجلی مزید 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو بھجوا دی ہے. درخواست اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل اور فرنس آئل سے مہنگی ترین پیداوار بجلی مہنگی ہونے کی وجہ ہے. گزشتہ ماہ ڈیزل سے 22 روپے 62 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی. سی پی پی اے کا موقف سامنے آیا ہے، جبکہ فرنس آئل سے 18 روپے 24 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی ہے. سی پی پی اے کی درخواست پر 30 ستمبر کو سماعت ہوگی. منظوری کی صورت میں صارفین پر 25 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء مہنگی ہو گئیں. شہری حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں مہنگائی نے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا. عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں رہا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. غازی خان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں. شہری کہتے ہیں حکومت نے عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا. ریلیف کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی تمام چیزیں مہنگی کر دی گئیں. ریلیف تو نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر. اب دال کی قیمت دیکھ لو، یہاں چنا کی دال 140 ہے، بازار میں 125 روپے ہے. مونگ کی دال یہاں 240 روپے، بازار میں 190 روپے کلو ہے. تو آٹے کا سلہ ہی مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، سامان ملتا نہیں ہے پورا اسٹوروں کے اوپر. گھی بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، آٹا بھی مہنگا ہے. غریب آدمی بھی پول سے بڑا دور ہو چکا ہے. یہ میاں والی کے شہریوں کا کہنا تھا کہ عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں رہا. یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب مختلف برانڈز کے صابن 3 سے 10 روپے، ٹیشو رولز، ٹوائلٹ ٹیشو اور نیپکن کی قیمت میں 3 سے 19 روپے، کپڑے دھونے کا صابن 22 روپے، ٹوائلٹ کلینر اور بلیچ کی قیمت 4 سے 12 روپے، جبکہ ملک کریم 10 روپے مہنگی کر دی گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے. عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں رہا. جب یوٹیلیٹی سٹور پر چیزیں عام مارکیٹ کی طرح برابر ہوں گی کہ لوگ ادھر آنے کی بجائے دکانوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہاں تو ادھار بھی مل جاتا ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر اسی ریٹ پر چیز ملتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یوٹیلیٹی سٹور کا اب رخ نہیں کرتے. پہلے سستی چیز ملتی تھی، اس لیے لوگ یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کرتے تھے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ریلیف ملنا ہاں بن گیا ہے. ادھر رحیم یار خان میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنے کے لیے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے کہا کہ انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے. پرائس کنٹرول جو میکنزم ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر کریں، اسٹریجنٹ کریں، اور اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ سستی پرائس میں ملے. ہوتا یہ ہے کہ ہم صبح مارننگ میں جب آکشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پرائس فکس ہو جاتے ہیں، لیکن جو ریٹیلر ہے وہ مہنگی چیزیں بیچتا ہے. اسی طرح جو ہمارے شیڈیولڈ آئٹمز ہیں وہ بھی مہنگی بکتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں ان کا بڑا رول ہے، کیونکہ وہ جتنا ایفیکٹولی اپنا رول پلے کریں گے اتنا زیادہ ہم پرائس کو کنٹرول کر سکیں گے. تو اس حوالے سے یہ 2 روزہ ٹریننگ ہے. یہ بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں.
उधर कहरोड़ पक्का में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का 5 रोजा हड़ताल का ऐलान। लोधरा की 19 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई। आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब सरकारी गंदम इजराह की पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। ज़िला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हाफिज हैदर अब्बास का कहना था कि लोधरा की 19 फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की गंदम के इजरा की पॉलिसी को भी मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अब फ्लोर मिल्स सरकारी गंदम नहीं खरीदेंगी। मौजूदा पॉलिसी से आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात न होने पर ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ जाएगी। ज़िला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हाफिज हैदर अब्बास का कहना था कि यह बहरान गंदम की सप्लाई बर वक्त न होने की वजह से पैदा हुआ है। अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो बहरान में इजाफे का खदशा है। दूसरी ओर हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन में पाबंदियों में नरमी कर दी है। मार्केट और बाजारों के कादकार रात 10 बजे तक होंगे। सुबह पंजाब में सिर्फ एक दिन इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। इंडोर डाइनिंग की 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक इजाजत दी गई है। आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात में सिर्फ 200 वैक्सीनेटेड अफराद की इजाजत होगी। आउटडोर शादियों की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे, जबकि सूबे में तमाम मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ताहम वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकते हैं। सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। हर तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स और सोशल इवेंट्स पर पाबंदी बरकरार है। जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद हासिल कर सकेंगे, जबकि दफातर में 100% हाजिरी की भी इजाज़त दे दी गई है। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ चल सकती है, जबकि ट्रेनें 70% सवारों के साथ चल सकेंगी। जनूबी पंजाब में 15 से 18 साल के नौजवानों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। डीजे खान में रोजाना 150 नौजवानों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि बहावलपुर में बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के स्कूलों में ताहाल कोरोना वैक्सीनेशन शुरू न हो सकी। स्कूलों से बच्चों का डाटा अपडेट करके महकमा सेहत को भिजवा दिया गया। जल्द वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पास जी 9th और 10th के जो 15 से अबव बच्चे हैं उनकी तादाद 600 से 700 तक बन सकती है और आजकल उनका डाटा फीड हो रहा है। जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह ताला बच्चों को वैक्सीन करवाएंगे। डीजी खान में नौजवानों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। 15 से 18 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर शान मुस्तफा का कहना था कि रोजाना 100 से 150 नौजवानों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 14 to 18 जितने भी हैं एज ग्रुप वाले वो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास वैक्सीन लगवाने के लिए। पे फॉर्म ओरिजिनल हमारे पास लेकर आते हैं, हम उनको देख कर फिर उसको वैक्सीन इंजेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी अभी तक बच्चे आ गए हैं, डेली वेजेस पे आ जाते हैं, कोई 50-100 के बिटवीन आ जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर रश। 15 से 18 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। यादगार क्लब सेंटर पर 2 रोज में 120 नौजवानों को वैक्सीन लगाई गई। मुजफ्फरगढ़ में अब तक 8 लाख शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फोकल पर्सन अदनान लगारी का कहना था कि वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और यादगार क्लब के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर रोजाना 800 से 900 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर महकमा सेहत ने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए एक अमरकस ली टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्तान डिवीजन के सरकारी स्कूलों में 15 साल के 2000 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं। 6 सरकारी स्कूलों में एक दिन में वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि बच्चे खुद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए मुत्तहिद। मुल्तान डिवीजन के सरकारी स्कूलों में 15 साल से 17 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। टीम एक दिन में 6 स्कूलों का दौरा कर रही है। सरकारी स्कूलों में 15 साल के बच्चों की तादाद 2000 से जायद है। अभी हमारे स्कूल की बारी नहीं आई, तो जैसे हमारे स्कूल में टीम आएंगी हम वैक्सीन लगवा देंगे। हमने अपने घर कहा है कि हमें वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन लगवा दें, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर यही है कि जो टीमें स्कूल में हैं उन्हीं से लगवाएं। गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल के बच्चों का कहना था कि अभी इनके स्कूल की बारी नहीं आई। हमारे स्कूल में 15 साल के 25 बच्चे हैं। वालिदैन ने भी वैक्सीनेशन करने का कहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और अपने कार्ड्स पहने स्कूल में मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है कि वैक्सीनेशन के लिए जो 15 साल के बच्चे हैं उनको स्कूलों में जो है ना ये सहूलत फराहम की जा रही है। हुकूमती हदायत के मुताबिक हमने अपने स्टाफ के स्कूल के तमाम बच्चों की जो है ना लिस्टें तैयार कर ली और जैसे ही यहाँ पर महकमा सेहत की टीमें आएंगी हम उनको वैक्सीनेशन जो है ना कराएंगे। दूसरी जानिब बच्चे बड़ों के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी पहुंच गए। अहले खाना का कहना था कि कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लगवाने का हुकूमती फैसला अच्छा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
वाली के सरकारी तालीमी इदारों में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के तमाम तलबा को वैक्सीन लगा दी गई है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। वाली गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के 1800 तालिब इल्मों को कोरोना वैक्सीन लग गई। फोकल पर्सन कोरोना SOPs प्रोफेसर आमिर काजमी ने बताया 11वीं 12वीं के बच्चों को हेल्थ टीमों ने कॉलेज आकर वैक्सीन लगाई, जबकि दीगर तालिब इल्मों ने वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन कराई। वैक्सीनेशन का ये अमल शुरू हुआ, इसमें 15 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगानी थी, तो हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर लिया है। ऑलरेडी हमारे पास जो MA के और BS के स्टूडेंट्स हैं वो भी वैक्सीनेट हो चुके हैं। तालिब इल्मों का कहना था कि वैक्सीन के बारे में मनफी प्रापरकंडा किया गया। वैक्सीन कराने के बाद किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। वैक्सीन ही वबा से बचाव का वाहिद जरिया है। लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लोग कहते हैं बुखार हो जाता है और जिसमें दर्द होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये हमारे फायदे के लिए हमें लगवानी चाहिए। इससे हम बिल्कुल कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे कहते हैं कि मर जाएंगे और ये आगे पीछे जो बातें हो रही हैं ये ऐसे बस बच्चों को डराने के लिए। और महकमा हेल्थ की जानिब से बताया गया है कि जिला भर में बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। उधर जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह के खिलाफ FIA साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 6 मुलजिमान को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 134/21 डॉक्टर तैमूर आसिफ की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिमान जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट तैयार करने में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अशरफ जूनियर क्लर्क, अब्दुल्ला अटेंडेंट, नवीद अंजुम ज़ियाद चार्ज मेल नर्स और मोहम्मद वसीम गार्ड भी शामिल हैं। कायद-ए-आज़म अकेडमी में छापे के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान में गुलाम फरीद और शहजाद इकबाल शामिल हैं। मुलजिमान पोर्टल पर जाली अंदराज करके सर्टिफिकेट जारी करते थे। मुलजिमान के दीगर साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी है। मुलजिमान के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब इमरान सिकंदर बलोच की मुल्तान आमद। शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया। बच्चों को पोलियो के हिफाजती खतरे भी पिलाए। मुतादिद इजलास की सरबराही भी की है। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच मुल्तान पहुंच गए। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल में अमूर का जायजा लिया। नश्तर अस्पताल में कायम मैक्स वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। MS नश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद बुखारी ने ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि अस्पताल में अमले की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको देखना जरूरी है। चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत फोकस है जनूबी पंजाब पे, उनको अपडेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि फील्ड विजिट किए जाएं और जो मौरूजी हालात हैं उस पर उनको अपडेट करें। लेकिन मेरे इस विजिट का जो प्राइमरी मकसद है वो पोलियो कैंपेन का लॉन्च है। DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर का कहना था कि पंजाब भर में 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का टारगेट जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 60 से 70% आवाम को वैक्सीनेट करना एज क्विकली एज पॉसिबल, ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो सके, ताकि हम आने वाली जनरेशन को, नस्लों को, बच्चों को इस बीमारी से बचा सकें। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में इजलास भी हुआ। तमाम अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक दर्ज करने की हिदायत की गई। इन्होंने कहा कि MS की मेडिसिन मैनेजमेंट बारे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब और सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास की सदारत की। अतायत के खात्मे की हिदायत कर दी। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। अब बात करेंगे बढ़ते हुए जराम के हवाले से। मुल्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड स्कैंडल का मामला। गिरफ्तार 4 मुलजिमान के खिलाफ FIA साइबर क्राइम की तहकीकात जारी हैं। मुतासरीन का कहना है कि मुल्क भर से 60,000 से ज्यादा अफराद ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर मेगा फ्रॉड स्कैंडल का मामला। FIA हुकाम ने गिरफ्तार 4 मुलजमान के अकाउंट सील कर दिए। दूसरी जानिब मुतासरीन का कहना है कि मुलजमान ने 10% मुनाफा देने का वादा किया था। जी, हमने ये पैसे लाखों रुपए की अमाउंट जो है वो डॉलर्स की मद में इनको दिए और इन लोगों ने हमसे फ्रॉड किया है और जिसको महीने गुजर गए और ये हमारी प्रॉफिट जो इन्होंने हमसे वादा किया था वो तो नहीं दे रहे और हमारी जो उसके बरक्स हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी वापस नहीं कर रहे। मुतासरीन के मुताबिक मुल्क भर से 60,000 से ज्यादा अफराद ने पैसे लगा रखे हैं, जिनमें बेवा खवातीन भी शामिल हैं। मुतासरीन ने घरेलू अशिया, मवेशी और जेवरात बेचकर पैसे इन्वेस्ट किए, ताहम मुनाफा मिलना तो दूर की बात, असल रकम भी वापस नहीं मिल सकी। 60,000 इन्होंने बताया था कि जी हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जो और लोग हैं, कई बेवा लोग औरतें हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कई लोगों ने अपनी भैंसें बेच के इन्वेस्टमेंट की हुई है, कई लोगों ने अपना जेवर बेच के
इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्होंने इस बात पे कहा था कि जी हम आपको 10% देंगे, लाख पे 10% आपको प्रॉफिट देंगे। FIA हुकाम के मुताबिक मफरूर मुल्जिम उस्मान गनी केस का मास्टरमाइंड है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि शायद ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ये अरबों में कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं और सैकड़ों में इनके कस्टमर्स मौजूद हैं इस वक्त। इस चीज़ की हम वेरिफिकेशन अभी कर रहे हैं। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। एक इनका मास्टरमाइंड है मोहम्मद उस्मान गनी के नाम से, उसको भी हमने नामजद किया है। वो अक्सर लाहौर में कहा जाता है कि मौजूद है, उसकी भी हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। जो इनके पीछे मजीद एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। इब्तदाई कार्रवाई में गिरफ्तार मुल्जमान के अकाउंट सील कर दिए गए हैं, जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा रकम मौजूद है। कैमरामैन मुगीस शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। FIA साबिक क्राइम विंग इन एक्शन नाजेबा वीडियोस के जरिए शहरी को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल फोन से वीडियोस बरामद, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्तान के रिहायशी ने मुलजिम जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शहरी का कहना था कि मुलजिम नाजेबा वीडियोस के जरिए हरासा कर रहा है। साबिक क्राइम विंग ने छापे के दौरान मुलजिम के जरिए इस्तेमाल मोबाइल फोन से वीडियोस और तस्वीर बरामद कर ली है। मुलजिम जुबैर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि साबिक क्राइम हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया और गैर मुतल्लिका अफराद के साथ शेयर की। मुल्तान में इश्तिहारी मुलजिमान की अब खैर नहीं। CPO मुनीर मसूद मात ने इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म दे दिया। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मात का कहना था कि इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाए ताकि जराइम की शरह में कमी लाई जा सके। उन्होंने तमाम थानों को खसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत भी कर दी। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पुलिस ने 60 इश्तिहारी मुलजिमान और 26 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। बहावलनगर से ताल्लुक़ रखने वाला एक और सपूत धरती पर कुर्बान हो गया। फौजी सैफुल्लाह सियाचिन में दहशतगर्दों की जानिब से हमले में शहीद हो गए। शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाका नोरसर में अदा करने के बाद फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। सियाचिन में वतन अजीज का दिफा करते हुए बहावलनगर का एक और सपूत सिपाही सैफुल्लाह शहीद हो गया। दहशतगर्दों की जानिब से हमले के दौरान शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाका नोरसर में अदा की गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद, सिविल सोसाइटी और पाक फौज के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाका नोरसर के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौका पर फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी भी दी। सैफुल्लाह शहीद ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटियां, 1 बेटा, वालिदैन और 4 भाई छोड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में तकरीब हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। सियासी शख्सियात के अलावा वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिलावल के हक में नारे भी लगाए गए। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट बार हाल मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 33वीं सालगिरह का केक काटा गया। सदर PLF जनूबी पंजाब शेख गयासुल हक का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बासलिया सियासतदान है। इनकी कायदाना सलाहियतों की वजह से नौजवानों में एक नई तहरीक पैदा हुई। अगले वजीर आजम भी बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। आज हम बहुत खुश हैं कि भुट्टो का वारिस, जमहूर का वारिस, आइन का वारिस आज हमें मौजूद है, जो भुट्टो साहब की और बीबी शहीद की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। हम सब इनकी लंबी उम्र के लिए दुआगो हैं। हम वहाँ आज उनका जहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, वहाँ तजदीद अहद कर रहे हैं। हम उनकी जदोजहद में शाना बशाना शरीक रहेंगे और उस वक्त तक अपनी सियासी सफर और जदोजहद जारी रखेंगे उनकी क़यादत में, जब तक भुट्टो शहीद का मिशन की तकमील नहीं होती। सालगिरह की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुल्तान सिटी AD बलोच, सीनियर कंदूनन हबीबुल्ला शाकिर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी, जनरल सेक्रेटरी उसामा बहादुर अली, एडवोकेट ख्वाजा नूर मुस्तफ़ा, एडवोकेट राणा जवेद अख्तर, एडवोकेट सैयद आरिफ शाह, एडवोकेट वाजिद रिजवी, एडवोकेट फेरोजा फैज, एडवोकेट नवीद उर रहमान हाशमी, एडवोकेट मार इकबाल सरगाना, एडवोकेट रिजवान हास, एडवोकेट फरदोस जमाल, एडवोकेट इमरान भुट्टा, एडवोकेट नगीना मंजूर हिराज, एडवोकेट सैमा अनवार चौधरी और एडवोकेट सैयद इश्तियाक शाह ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा मकसूद चौहान, मुल्तान। मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 33वीं सालगिरह के मौका पर पीपल्स लाइव फोरम के सदर मलिक रिजवान हांस की रिहाइश का फिर केक काटा गया। सियासी और समाजी शख्सियत समेत पार्टी अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। केक कटिंग की तकरीब में साबिक MPA डॉक्टर जावेद सदीकी, जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग साउथ पंजाब साइमा आमिर खान, डॉक्टर जफर खान, मोहम्मद
पप्पू, हांस, असलम भट्टी, मोहम्मद अली बलोच समेत दीगर पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका ने अपने महबूब लीडर के हक में नारे भी लगाए। जयालो ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 33वीं सालगिरह पर एक दूसरे को केक भी खिलाया। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी की दराज़ी उम्र के लिए दुआ भी की गई। सरबरा अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती का कहना है कि करोड़ों की रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के पांवों में बैठी है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबरा अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती का कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा बनेगा। पाकिस्तान में खुशामद की सियासत है, जो वजीरों की खुशामद करता है उतना मौजिज शख्स बन जाता है। जमशेद दस्ती का कहना था कि मुल्क को खतरा सिर्फ आज के सियासतदानों से है। हुक्मरान बंद कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हैं। जमशेद दस्ती ने इल्जाम लगाया कि मुजफ्फरगढ़ में जराम पेशा पुलिस एहलकार को SHO लगाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर अफसर लगाए जाते हैं। हुकूमत इलेक्शन वक्त से पहले करवाना चाहती है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगी। अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के पांवों में पड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान अकेले क्या करते? कौम को जागना होगा, वरना पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। और डीजी खान डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद का दौरा पुल डॉट। DC ने मॉन्यूमेंट की तामीराती काम का जायजा लिया। तामीराती काम में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार भी किया है। DC की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट करेंगे। डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद ने दौरा पुल डॉट। DC ने मॉन्यूमेंट की तामीराती काम का जायजा लिया। तामीराती काम में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार भी किया, जबकि DC की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत भी सामने आई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह का मेलसी का दौरा। SDPO ऑफिस मेलसी का मुआयना किया और मुकम्मल रिकॉर्ड की चेकिंग की। RPO मुल्तान ने संगीन मुकदमात के मुद्दइयों से भी मुलाकात की। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह ने मेलसी का दौरा किया। DSP ऑफिस मेलसी का मुआयना करते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया। इस मौका पर CSP मेलसी चौधरी फरुख जावेद ने RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली को ब्रीफिंग दी। RPO मुल्तान ने संगीन मुकदमात के मुद्दइयों से भी मुलाकात की और मुकदमात की तफ्तीश में पेशरफ्त बारे मालूमात ली। RPO ने तफ्तीशी अफसरों से भी तफ्तीशी अमूर बारे पूछगछ की। RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने कहा कि संगीन मुकदमात की तफ्तीश में शफाफियत और मेरिट को अपना रहे हैं। लोगों को इंसाफ देना इबादत है। रहीम यार खान में टूरिज्म वीक की इफ्तिताही तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने हैवी बाइक को ड्राइव करके टूरिज्म वीक का इफ्तिताह किया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रहीम यार खान में टूरिज्म वीक की इफ्तिताही तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने फीता काटने के बाद हैवी बाइक ड्राइव करके इफ्तिताह किया, जिससे बाइकर्स की खूब हौसला अफजाई हुई। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर रियासत अली, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रहीम यार खान उस्मान चौधरी, फरहान आमिर एडवोकेट, रोही बाइकर्स क्लब व क्रॉस रूट क्लब के ओहदेदारान, माहिदा सनम अब्बासी, जिली जनरल सेक्रेटरी PTA मुनीबा शाहिद, फरहान आमिर एडवोकेट व दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना था कि सियाहत के फरोग के लिए एक हफ्ते तक टूरिज्म तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। रैली का मकसद ये है कि हम जो हमारा खूबसूरत चोलिस्तान है वो हम लोगों को दिखाएं, और ये हमारी जो बाइक रैली है ये पूरी चोलिस्तान को कवर करेगी। और बेसिकली ये हमारा जो इंटरनेशनल टूरिज्म डे है उसके हवाले से हमारी ये जो है तकरीबात हो रही है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का मजीद कहना था कि टूरिज्म के फरोग से मुल्क की मईशत मजबूत होने के साथ वतन अजीज का खूबसूरत इमेज भी दुनिया के सामने आ जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।